اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق کاملہ سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اس بابرکت ایمانی، نورانی، روحانی، فکری اور علمی کلاس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کلاس انتہائی اہم کلاس ہے اس لحاظ سے کہ عام طور پر جو مختلف کلاسیں ہوتی ہیں اس میں بندہ ایک ہی طرح کی چیز سیکھتا ہے، لیکن یہ کلاس 1 گھنٹے کی جو کلاس ہے اس میں ہم مختلف چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس میں ہم قرآن مجید کی ادائیگی کے حوالے سے بھی سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ نماز کا طریقہ کار اور نماز کے مسائل، یہ چیزیں بھی ہم اس میں سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کلاس کی اہمیت مزید جو ہے وہ اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ اس کلاس میں ہم ترجمہ قرآن پاک اور شارٹ تفسیر قرآن مجید کی وہ بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ اور ترجمہ قرآن پاک سیکھنے میں ہم جو ہے وہ الحمدللہ گرامیٹیکلی جو ہے کچھ فارمولے ہم یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، جن کے ذریعے ہمارے لیے لفظوں کو سمجھنا، عربی الفاظ کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ہمارے لیے جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس میں ہر کلاس میں ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا انتخاب کرتے ہیں جو 3 یا 4 لفظوں پر مشتمل ہوتی ہے، تو جو آسانی کے ساتھ سب احباب اس کو یاد کر سکیں۔ تو ہر کلاس میں ایک حدیث پاک کو شامل کیا جاتا ہے اردو اور نسخ ٹرانسلیشن کے ساتھ، تاکہ سب احباب اس کو یاد کر لیں۔ چونکہ یہ پہلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری 40 حدیثیں یاد کرے زبانی دین کے معاملات کے حوالے سے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ایک عالم کی حیثیت سے اٹھائے گا اور ایک فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے 40 فرامین یاد کرے گا تو میں قیامت کے دن خود اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا۔ تو یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ، اور یہ کوئی اتنا بہت بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، ہم بہت ساری چیزیں بھی یاد کر لیتے ہیں بکس میں، کلاس میں، اسکول کی چیزیں اور دیگر بہت ساری چیزیں ہم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ 40 فرامین حضور کے 40 جملے یاد کرنے ہیں، وہ 40 جملے کہ جو زبان مصطفیٰ سے جو صادر ہوئے نکلے ہیں، ان 40 جملوں کو یاد کرنا ہے ہمیں۔ ان 40 جملوں کو یاد کرنے سے دیکھیں کتنی برکتیں انسان کو نصیب ہوں گی۔ تو ایک حدیث پاک کو ہم شامل کرتے ہیں، اسی طرح ہم ہر کلاس میں ایک دعا کو بھی شامل کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں مختلف دعاؤں کو سننے کا اور پڑھنے کا جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اسلام نے مختلف مواقع کی مختلف دعائیں عطا کی ہیں، مختلف چیزوں کی جو ہے مختلف دعائیں عطا کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم دعائیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو دعاؤں کو پڑھنے سے، ان کو یاد کرنے سے بندے کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کام میں برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ جو کوئی بھی کام کرے تو اس کو ساتھ ساتھ اللہ بھی یاد رہتا ہے، مولا بھی یاد رہتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح یہ کورس ترتیب دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مخارج کا سبق کمپلیٹ کر دیا ہے، الف سے لے کر یا تک 29 حروف کے ہم نے مخارج پڑھ لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس سے میں ان کی ریویژن بھی شروع کرا دوں گا انشاءاللہ، کہ جو ہم نے پڑھے ہیں مخارج ان کی ہم دہرائی بھی کریں گے۔ تو آج میں نے مخارج کو نہیں لیا، اس لیے یعنی آج ریویژن اس لیے نہیں شروع کی کیونکہ آج ہم نے پچھلی کلاس میں ایک قاعدہ پڑھا تھا اظہار کا، تو آج ہم نے ایک نیا قاعدہ پڑھنا ہے اخفاء کا۔ تو یہ ذرا 2 قاعدے ہیں، ان دونوں قاعدوں کو اچھی طرح ہمیں اس پہ سمجھنا، اس پہ ذرا ٹائم لگانا ہے۔
इस पे मेहनत करनी है, इनको समझना है। ये दो कायदे सीखने से हमें ये पता चल जाएगा कि कुरान मजीद में कहाँ गुनाह करना है और कहाँ गुनाह नहीं करना। ठीक हो गया? पूरे कुरान मजीद में हमें एक दो कायदे सीखने से हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ गुनाह करना है और कहाँ गुनाह पूरे कुरान मजीद में। तो एक कायदा तो हमने पिछली क्लास में सीखा था, आज हमने दूसरा कायदा सीख रहे हैं, इसलिए मखारिज को आज नहीं, मैंने अगली क्लास में रख दिया। तो आइए हम पहले हम पिछले कायदा जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में उसको ज़रा एक नज़र देखते हैं ताकि आपके ज़हन में वो दोबारा ताज़ा हो जाए। हमने पढ़ा था दे फिनस फीरा रेगुलर फॉर नून साकिन और तनवीन। नून साकिन और नून तनवीन के कितने कायदे हैं? चार कायदे हैं। ठीक है जी, ये तो आप जानते हैं, 12 मरतबा ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सब आप इससे बखूबी वाकिफ हैं कि नून साकिन क्या होता है और नून तनवीन क्या होता है। आप जानते हैं इस अलामत को क्या बोलते हैं? जज़्म की अलामत बोलते हैं। इस अलामत को क्या कहते हैं? जज़्म। और जिस हर्फ पर ये जज़्म की अलामत आ जाए उसे साकिन बोलते हैं। तो नून पर यही अलामत आ जाए तो ये नून साकिन कहलाता है। क्या कहलाता है? साकिन कहलाता है। और दूसरी बात क्या है? तनवीन। तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, ये बुनियादी बात समझने के बाद तो नून साकिन और नून तनवीन यानी ये जो हम 4 कायदे पढ़ने हैं हमने तजवीद के, ये कायदे किससे मुतालिक है? नून साकिन और नून तनवीन से मुतालिक है, इनसे ताल्लुक रखते हैं। तो इन 4 कायदों का आप जरा नाम बोल दें। पहला कायदे का नाम क्या है? इजहार। सारे बोले इजहार। दूसरे कायदे का नाम क्या है? इक़लाब। तीसरे कायदे का नाम क्या है? इदगाम। और चौथे कायदे का नाम इक़लाब। तो हम इजहार का कायदा पिछली क्लास में पढ़ा और आज हमने पढ़ना है इख्फा, और इंशाल्लाह आइंदा क्लासों में हम इदगाम का और इक़लाब का कायदा पढ़ेंगे। तो ये इजहार और इख्फा उर्दू के लफ्ज़ हम यूज करते हैं जाहिर और मख्फी। ठीक है, जाहिर मख्फी। इजहार जाहिर करना, इख्फा छुपाना, पोशीदा करना। ठीक हो गया? क्योंकि इजहार में नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ा जाता है और बगैर गुन्ने के। बोले इजहार में क्या होता है? नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ते हैं। इख्फा में क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, नून की आवाज को छुपाकर गुन्ने के साथ पढ़े। बस इतनी सी बात है, मुश्किल तो नहीं है। खामोशी का मतलब मुश्किल है, इजहार का मतलब जाहिर करना। बोले इजहार का मतलब जाहिर करना। अगर आप बोलेंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगा। इजहार का मतलब जाहिर करना। मुराद क्या है? नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ना। सारे ये जुमला बोले, नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ना। सारे बोले नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ना। इख्फा इसको उल्टा करते हैं, नून की आवाज को छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ना। ठीक हो गया जी? एक बार फिर इजहार नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ना। इख्फा नून की आवाज को छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ना। ठीक हो गया जी? चलें अब हम जरा देख लेते हैं इजहार कब होता है और इख्फा कब होता है। जी, देयर सॉन्ग एन अबू स्तावना ई ग्रुप पर हुफे हल्किया खमर एथन नून साकिन एल तनवीन यल्दर रेगलन फॉर इजहार। ठीक हो गया जी? जब ये हुफे हल्की हैं, हमजा हा आइन हा गैन खा। एक बार सारे बोलें जी, हमजा हा आइन हा गैन खा। सारे बोलें हमजा हा आइन हा गैन खा। ये 6 हुफे हल्की। जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद इन 6 हरफों में से कोई एक हरफ आ जाए तो कौन सा कायदा अप्लाई होगा? इजहार। कौन सा कायदा अप्लाई होगा? इजहार का मतलब तो आप जान चुके हैं कि इजहार का मतलब नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ना। तो लेकिन ये कायदा अप्लाई कब होगा? जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद, जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद इन हरफों में से कोई एक हरफ आ जाए, हमजा हा आइन हा गैन खा, इनमें से कोई एक हरफ आ जाए तो वहां ये इजहार का कायदा अप्लाई होगा। यानी वहां हमने क्या करना है? अथमन इक्के स्कल योरा गुन्ना वे लेसिंग आव नून साकिन और तनवीन, बगैर गुन्ना की हमने उस नून साकिन और नून तनवीन को अदा करना है।
ठीक हो गया जी। आज हम दूसरा कायदा पढ़ने लगे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, दोहराई के लिए मैंने दोबारा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इख्फा। इख्फा का माना क्या है? नून की आवाज को छुपा कर गुन्ना के साथ पढ़ना, नून की आवाज को छुपा कर गुन्ना के साथ पढ़ना जी। That's on and of bokstavene av rufe ikhfa kommer etter noen saken eller tanwin gjelder regelen for ikhfa। ठीक हो गया जी। नून साकिन और नून तनवीन के बाद इन हरफों में से, ये जो नीचे लिखे हुए ये रूफे इख्फा है, इन हरफों में से कोई एक हर्फ आ जाए, इन हरफों में से कोई एक हर्फ आ जाए तो फिर कौन सा कायदा अप्लाई होगा? इख्फा का। कौन सा कायदा अप्लाई होगा? इख्फा का। तो इख्फा कैसे करना है? मन अत मन कल ये हो रहा है गुन्ना वे लेसिंग आव नून साकिन और तनवीन। इख्फा का मतलब क्या है कि हमने नून साकिन और नून तनवीन को गुन्ना के साथ पढ़ना है। नून साकिन और नून तनवीन को गुन्ना के साथ पढ़ना है। दे आर ई अल्ट 15 रूफे इख्फा और दे आर फोल्डर। कितने हैं रूफे इख्फा? 15 हैं और वो ये है। अब आपके ज़हन में एक प्रॉब्लम आ गई, फौरन आप सोच रहे हैं, सब आप क्या सोच रहे हैं? ये 15 हर्फ कौन याद करेगा? ये 15 हर्फ कैसे याद होंगे? तो आइए इनको याद करने का तरीका समाप्त। अच्छा, अलिफ से लेकर या तक कितने रूफ हैं? 29 हैं। उनमें से 6 ये निकल गए, हमजा हा, आइन हा, गाइन हा। ठीक हो गया? रूफे हल्की, रूफे हल्की ये 6 ये निकल गए। जो दो कहते हैं इकलाब और इदगाम। इकलाब में एक हर्फ इस्तेमाल होता है बा, कौन सा हर्फ इस्तेमाल होता है? बा। और उसके बाद इदगाम। इदगाम के कायदे में एक लफ्ज है यरमलून। क्या लफ्ज है? यरमलून। या रा मीम लाम वाव नून, या रा मीम लाम वाव नून। 6 हर्फ ये हो गए। ठीक है? 6 वो 7 और ये यरमलून 6, ये 7 और 6 कितने हो गए? 13। बाकी जो रूप बचते हैं वो सारे रूफे इख्फा है। ठीक हो गया? ये आपने कहना याद किया। रूफे हल्किया को निकाल दें, यरमलून को ज़हन में रखें। ठीक है? यरमलून एक लफ्ज याद, ये रूफे इदगाम है, ये रूफे इदगाम, इनको निकाल दे और बा को निकाल दे। इसके अलावा बाकी सारे रूफे इख्फा है। इसके अलावा बाकी सारे इख्फा है। ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन साद दाद ता जा फा काफ काफ। रूफे इख्फा को याद करने के लिए आप बस ये याद कर लें, वो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक हो गया? दोबारा सुने। अब हम वो याद करें, ता सा जीम दाल जाल, उनको याद करने बजाय आप ये ज़हन में रखें कि रूफे हल्किया वाला कायदा लग गया इजहार, बा वाला कायदा इकलाब, वो अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। उसके बाद यरमलून मैंने एक लफ्ज लिख दिया ताकि सबको ऐसे हम याद करें, या रा मीम लाम वाव नून की बजाय हम यरमलून का लफ्ज याद कर लें। यरमलून रूफे, इनको रूफे इदगाम भी कहते हैं, रूफे यरमलून भी कहते हैं। या रा मीम लाम वाव नून 6, ये 7 और 6 ये 13 निकाल दें, बाकी जो पीछे रूप बचते हैं वो सारे रूफे इख्फा हैं। ठीक हो गया जी? तो अब दोबारा इस कायदे को देख लें आप। रूफे इख्फा, इख्फा का माना है छुपा कर पढ़ना, नून की आवाज को छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ना। बोले, नून की आवाज को छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ना, ये क्या कहलाता है? इख्फा। ये कायदा कब अप्लाई होगा? जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां ये इख्फा का कायदा लगेगा। ठीक हो गया? अब मजीद आप ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है समझने के वाले से, वो हम मिसालों से पूरी कर लेते हैं। आप जरा मिसालें देखें ताकि ये आपको ज़हन में बैठ जाए। मिसालें देखने से पहले आप मुझे बताएं कि रूफे हल्किया कितने हैं? 6 जी। बोले कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गाइन हा, सारे बोले। इकलाब का एक ही हर्फ है, कौन सा? बा। ठीक हो गया? इकलाब, बा को ज़हन, इकलाब एंड बा पे हो रहा है, बा को ज़हन में रखते हैं। इकलाब
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد